Okay, from Ramanujan. आजो middle row boy. आजो बेटा. C option, Center for Disease Control. The name, the organization. Organization का नाम पूछा है. So it's a United Nation. Everyone, note down. The answer of the first is. The answer of the first is it's A. That is United Nation. ठीक है? Now last step in wastewater treatment is dash process. क्या होता है? Last step in wastewater treatment is dash process. Not same boy, not same class. Richardson, so I can see corner row, second last bench boy. आ जाओ फटाफट आओ. Yes, turn on the mic. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में सबसे लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है? केमिकल. यस, और कौन सा केमिकल हम मेनली यूज करते हैं बेटा? इवन आपके घर में पानी आता हो कई बार सफेद सा होता है, व्हाइट होता है. इट इज ड्यू टू व्हाट? एनी आइडिया? Chlorine. Yes, it's due to chlorine and chlorine is disinfectant. ठीक है, जो germs को kill करते हैं. ठीक है, sit down. So that's the correct answer. Now, next is why is it? Okay, इसका मैं आंसर लिख देती हूँ. Second का है D. Everyone note down in your worksheet. Now coming to 3, why is it essential to remove pollutant from waste water before it enters a water body? अगर कोई इंडस्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, ठीक है, और वो रिवर में जा रहा है, तो क्यों हमें उसे पहले क्लीन करना जरूरी है? Why it is necessary? Yes, from the Hardy, middle row, third bench girl. आ जाओ. See, cause damage to aquatic life. Can we say it also cause damage to water bodies? Both B and C. Yes, the answer is it's D. ठीक है, that's nice. Sit down, beta. Now, fourth question. The process settling down of particles of solid in liquid is. क्या कहलाते हैं इसको? आपने जो है, I think in your 6th standard also you learned about this process. So who is going to tell me? Thales से आ जाओ. Yes, from the Thales first bench boy. दोनों ने hand raise किया है. कोई भी आ जाओ. Sedimentation. Sedimentation. That's nice. It is C. That's good. Now fifth. The system of network of pipes used for taking away wastewater from homes or public buildings to the treatment plant is known as. Yes, Napier से. Yes, आ जाओ बेटा, corner row girl, second bench I think. Yes, आ जाओ. Ma'am, option D. Leverage. That's nice. It's D. अब इसको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. I want to show you this. So I'll show you through this. ठीक है, सब एक बार देखो. क्योंकि सीवर और सीवरेज में यू गेट कंफ्यूज्ड. हमारे घर से देखो वॉशरूम है, किचन है, उससे जो पाइप निकल रही है, ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज द पाइप जो हमारे घरों से निकल रहा है. दिस इज सीवर. ठीक है, अभी कहाँ जा रहा है? एक बड़ी सी पाइप है जो कि जिसमें बहुत सारे ये सीवर्स ज्वाइन है. ठीक है, और ये कहाँ जा रही है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है. सो इट्स ए सीवरेज. So that's why this is the correct answer. ठीक है, तो जो हमारे घरों से जो पाइप निकल रही है, these are sewers, then we have sewerage, और हर एक कुछ पॉइंट 50 मीटर के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसमें एक मैनहोल होता है. सॉरी, वो किस लिए होता है? कि इन केस समथिंग गेट स्टक हियर, कुछ अगर यहाँ फंस जाए या इसको साफ करना पड़े तो वहां पर अंदर जाके जो पर्सन है वो इसको ठीक कर सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन स्लज. Who is going to answer me this question?
define sludge. Yes. So question number 6 का कौन बता रहा है मुझे आंसर? I can see many hands from the Richardson, Ramanujan also. Pythagoras, can you answer this question? Question number 6, define sludge. Sludge क्या होता है? Yes, first bench girl आ जाओ इधर दो. मैम ऑप्शन ए. Option, the settled solid that are removed with scraper. ठीक है. So answer 6 का है it's A. So let me show you few steps of this also. ठीक है. क्विकली एक बार हम देखते हैं. वैसे तो आपने कर रखा है और you are giving good answers. ठीक है. So let's see here. अब जो हमारे वेस्ट वाटर में पानी चला गया, सॉरी वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट में जब चला गया, जस्ट गिव मी अ मिनट. नाउ आई थिंक इट्स प्रीटी विजिबल टू यू. अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन. अब ये देखो पानी है, ये जो ब्लू कलर की लाइंस है इट्स अ वाटर, वेस्ट वाटर. अब उसमें इम्प्योरिटीज है, बहुत चीजें मिक्स हैं. ठीक है. अब ये जो है हमारे पास एक स्क्रीन है, मैश है, जाली जैसी कोई चीज है, बार स्क्रीन जिसको हम कहते हैं. अब इसमें से अगर हम इसमें से इसको पास करेंगे, इसको यहां से जाने देंगे, तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सी पानी तो आराम से जा रहा है. ये देखो पानी चला गया. इवन जो बड़ी इंप्योरिटीज है वो क्या होगी, उस साइड फर्स्टली वो इधर नहीं आएगी. लेकिन जो छोटी इंप्योरिटीज है दे कैन कम अलोंग, वो जो है इस साइड चलेगी. तो अब हमारे पास जो पानी है उसमें ये वाला वेस्ट है, वो वाला वेस्ट नहीं रहा. बड़ी बड़ी जो कैन थे, प्लास्टिक थे, दे विल नॉट कम टू दिस साइड. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फिजिकल स्टेप. ठीक है. मैकेनिकल स्टेप. बार स्क्रीन से फिर जाता है ये पानी ग्राइंडर में, जहां पर इतने बड़े बड़े जो हमारे पास पत्थर थे उनको जो ग्राइंड करके छोटा किया जाता है. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हमने इसको ग्रिट और वी कैन से सैंड रिमूवल टैंक में डाला. तो क्या होगा, थ्रू सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन होगा, पानी अपने आप ऊपर होगा और ये ग्रिट और सैंड नीचे जो है सेटल हो जाएंगे. सो लेट्स सी हियर. सो यू कैन सी, ये देखो पानी है और ये जो हमारे ग्रिट एंड सैंड है दे विल सेटल डाउन. ये देखो यहाँ पर सेटल हो गए. अब इसके बाद ये जो पानी है ऊपर का, ठीक है, जो थोड़ा क्लीन है, इट विल गो टू सम अदर टैंक दैट इज वाटर क्लैरिफायर. ठीक है. वाटर क्लैरिफायर में जाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो हमारी मिट्टी पत्थर सब हट चुका है, लेकिन स्टिल वाटर इज डर्टी. उसमें जो है अभी भी ऑर्गेनिक कंटेंट पड़ा है. ठीक है. सो लेट्स सी हियर. अब हमने क्या करना है, इसमें जो है एक ट्रायंगुलर सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से जो वेस्ट है, जो अगर हम कहें मडी जो सब्सटेंस है जिसको हम स्लज कहते हैं, दे विल, जो फीसिस होंगे बेसिकली, फीसिस हो गए, ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया, इट विल कम डाउन. सो लेट मी शो यू. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, फ्रॉथ है. फ्रॉथ मतलब ऑयल हो गया, तेल जैसी चीज जो है वो ऊपर तैरेंगी. लेकिन जो हमारे पास स्लज जिससे बनना है इट विल कम डाउन. ये देखो नीचे आ गया, यहाँ पर सेटल हो गया. अब ये स्लज कहाँ जाएगा, सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. मैंने इसको छोटा कर दिया है. ठीक है. नाउ स्लज विल गो टू सम अदर टैंक. ठीक है. उस टैंक का नाम है सेपरेट टैंक. उसमें ये स्लज देखो ऊपर से अब नीचे आएगा. सी, इट इज कमिंग डाउन. ये देखो नीचे आ गया. अब इस स्लज को हम ड्राई होने के लिए रखेंगे, तो इसको हम एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं. सो आई शो यू. यहाँ पर देखो ये सैंड बेड बन गया इसका. ठीक है. जहां पर हमने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया, एंड वी कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर ऑल्सो. ठीक है. अब ये तो हो गया सॉलिड की बात, लेकिन जो लिक्विड है उसका क्या होगा. सो लेट्स सी हियर व्हाट वी विल डू विद द लिक्विड पार्ट. नाउ लिक्विड विल गो टू द इरिएशन टैंक. मतलब इरिएशन टैंक में क्यों जाता है, उसमें ऑक्सीजन दी जाती है,
जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया अच्छे वाले, उनको ग्रो किया जाता है, ताकि जो भी पानी में कुछ गंद है उसको वो खा जाए। जर्म्स विल ईट। अभी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसा मतलब इसको अगर हम डिटेल में पढ़े इट इज समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पर हम जो है माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जो भी इसमें गंद रह गया है उसको वो खा जाए और उससे वो कुछ और बनाए जो यूजफुल हो। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग हियर ऑक्सीजन। ठीक है, एरिएशन टाइम। अब यहाँ से ये हमारा जो पानी है फर्दर और क्लीन हो चुका है, क्योंकि अब जो माइक्रोब्स था उसने भी इनको खा लिया है। ठीक है, जो हमारा पानी है प्रिटी क्लीन, पीने वाला नहीं बनेगा इससे। ये जो गंदा पानी है इसको हम पी नहीं सकते आफ्टर द डिसइंफेक्शन ऑल्सो, बट वी कैन यूज इट। अब देखो लास्ट स्टेप इज, अभी पहले फिजिकल था, यहां तक इट इज फिजिकल, इट इज बायोलॉजिकल, एंड नाउ इट इज केमिकल। अब इस केमिकल वाले में हमने जो पानी है इसमें डिसइंफेक्शन होगा, वी विल पुट क्लोरीन इन इट एंड देन इट गेट क्लोरीनेटेड। ठीक है, अब इस पानी को हम किस लिए यूज कर सकते हैं? इरिगेशन के लिए, खेतों में यूज कर सकते हैं, गार्डन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है एज ए कूलेंट, सो इट कैन बी यूज इन मैनी वेज। ठीक है, so I hope it is pretty clear to everyone. So these are the steps in wastewater treatment. Clear है सबको? वैसे तो आपने पहले से पढ़ा हुआ था। Is it clear? These steps are clear. These are physical, this is biological, this is chemical. Is it clear? Okay, so अब हम वापस अपनी वर्कशीट पे आते हैं। ठीक है, so I'll show you worksheet again. So now coming to the 7th, World Water Day is observed every year. कब आता है वर्ल्ड वाटर डे? रिचर्डसन से आई थिंक थर्ड लास्ट बेंच मिडल रो गर्ल, आ जाओ, आ जाओ बेटा। वर्ल्ड वाटर डे, मार्च विच 21st और 22nd? 21st. इट्स बेटा 22nd। ठीक है, इट्स ऑन 22nd, तो आंसर इज इट्स ए। ठीक है, ओके सिट बेटा। Now waste from flushing toilet can be used for making Pythagoras से corner rows, last bench girl. I think girl is no boy. Yes beta. Last bench. No, it's a girl only. Yes beta, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दे देना। अब ये आ गया है तो 9th का आप आंसर दे देना। Yes, what's the answer of question number 8? Vermicompost. Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, your voice is not coming. मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी बेटा, so how can you hear me? हाँ, नाउ ध्यान से सुनो, ये तो खुद की आप सबकी आवाज ज्यादा आ रही थी। अब सुनो, वेस्ट फ्रॉम फ्लशिंग टॉयलेट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग। अब इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इज आल्सो करेक्ट एंड बायोगैस आल्सो। सो वी कैन से इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, सो वी कैन से इट्स बी एंड सी। ठीक है, both can be used. Now next question, water waste released by toilets often referred as? बी ऑप्शन कहा था। पाइथागोरस बेटा आवाज ज्यादा आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई और क्लास का बच्चा क्या बोल रहे हैं बेटा?
Yes, from other sections. Who can tell me the answer? जो वेस्ट वाटर आता है, ठीक है, द वेस्ट वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम, वी कैन से टॉयलेट्स, उसको हम क्या कहते हैं? यस रामानुजन, आ जाओ। ओके, excreta. ये बेटा मैम excreta. excrete, yes it is called excreta, ठीक है। Now coming to 10th question, the wastewater treatment give us two useful products. कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें जो है मिलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से? कैन यू टेल मी द नेम? ओके, रिचर्डसन, फर्स्ट बेंच सर। B option. So yes, we get biogas and dried sludge. Dried sludge को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बायोगैस में जो हम आपने प्रोसेस पढ़ा होगा सेप्टिक टैंक वाला, तो उसमें आपने देखा होगा बायोगैस रिलीज होती है। सो यस, 10th का इट्स डी। ओके, इसका तो एक्सक्रीटा था और इसका आ गया 10th का डी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव। सो आई शो यू दैट ऑल्सो, जब ये क्वेश्चन आया तो आई वॉन्ट टू शो यू दिस ऑल्सो। So this is a septic tank. Septic tank क्या होता है? Basically we can say that गांव वगैरह में क्या होता है कि प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता। So what people do there, वो जो है एक बड़ा सा पाइप लगाते हैं, नीचे गड्ढा करते हैं बहुत गहरा, जो कि पूरा कंक्रीट से बना होता है, ठीक है। पूरा जो है यहाँ पर उन्होंने पूरा पैकिंग किया होता है कंक्रीट से। इसमें जो है गंदा पानी जो है घरों से या वॉशरूम से, ठीक है, वो आता है यहाँ पर। और विद द टाइम जो स्लज है दैट गेट सेटल डाउन, स्कम क्या हो गया, जो ऊपर एक लेयर बनती है जो कि डिसॉल्व नहीं होती, दैट इज एयर जो कि निकाल दी जाती है। और वेस्ट वाटर जो है, दिस वेस्ट वाटर गोज टू द ड्रेन फील्ड, मतलब खेतों में ऐसे जो है डाल दिया जाता है ताकि एज ए फर्टिलाइजर यूज हो सके। और ये जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, तो यहाँ पर जो है माइक्रोब्स जो है यहाँ पर जो वेस्ट है उसको खा के गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बायोगैस, ठीक है, जो कि यूज होती है फॉर द वी कैन से रनिंग स्टोव ऑल्सो, ठीक है, इवन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो इट इज यूज मेनली देयर। सो नाउ Now coming to question number 11. Which plant absorb all surplus wastewater from the sewage ponds rapidly and release pure water vapor into the atmosphere? तो ये बहुत ज्यादा आपको पेड़ वैसे भी जो है खेतों के आसपास दिख जाएंगे, लंबे लंबे से होते हैं, दे आर वेरी टॉल, ठीक है। सो हु कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस? रामानुजन से कॉर्नर रो थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा। Eucalyptus. यस इट्स इक्लिप्टस, ठीक है, जिसको हम सफेदा भी कहते हैं, हिंदी भी कॉल इट सफेदा ऑल्सो। सो इट्स अ ट्री दैट एब्जॉर्ब, ठीक है, और इसको जो है ये पानी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन जहां पर पानी हमें ज्यादा चाहिए और हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो वहां पर इक्लिप्टस नहीं लगाते, ठीक है। तो 11th इज ए। Now coming to 12, the distance between two main hole is approximately, जो हमारे सीवर होता है ना, उसके ऊपर मैंने कहा एक कवर होता है जिसमें लोग जो अंदर जाके उसको साफ भी कर सकते हैं, तो उसके बीच में क्या डिस्टेंस हो? रिचर्डसन से आ जाओ बेटा, बॉय हु इज रेजिंग हिज हैंड, आ जाओ। 50 to 60 meters. Yes, it's 50 to 60 meter, that is B. That's nice. Poor sanitation in crowded public can result in spread of
बताओ क्या होगा? स्प्रेड ऑफ व्हाट? अगर पुअर सैनिटेशन सर्विस है, मतलब गंदगी ज्यादा है क्राउडेड एरिया में, तो उससे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू स्प्रेड? पास्कल से आ जाओ, मिडल रो, सेकंड लास्ट बेंच, थर्ड लास्ट बेंच वो है। Diseases. Diseases, that's right. D. Now coming to 14th question. Which of the following organism produce biogas from the sludge in the digester tank of a wastewater treatment plant? कौन स्लज प्रोड्यूस करेगा डाइजेस्टर टैंक ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? Okay, many of you know the answer. I'm glad. So let me see, whom should I call? Pythagoras. Let's call Pythagoras. Pythagoras, middle row, second last bench girl. Pythagoras, second last bench girl, middle row. Yes, yes, आ जाओ. Anaerobic bacteria. Which option, beta? A. Yes, it's anaerobic bacteria. ठीक है? Now coming to 15. Which of the following is not an inorganic impurity present in sewage? Yes, who is going to tell me answer of this question? कौन सा इसमें से इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं है जो सीवेज में प्रेजेंट हो? Yes, who can tell me the answer of this? Okay, again from the Ramanujan. और कोई सेक्शन बेटा? Other sections? रामानुजन बैठ जाओ बेटा. हार्डी से मिडिल रो सेकंड बेंच गर्ल आ जाओ बेटा. मैम यूरिया. Okay, yes, urea is not inorganic, it's organic. So yes, it's correct. It's C. ठीक है? So now next is 16th question. ठीक है? It's urea, that is C. Coming to 16th question. ठीक है? So 16th question is, which of the following are used to remove floatable particles from wastewater like oil, grease? तो हम किसको यूज करते हैं? जो हमने अभी एक पढ़ा था ना ऊपर, जो मैंने कहा था ऑयल जैसे जो चीजें ऊपर रह जाती हैं. सो व्हाट वी यूज हियर, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज इट स्कीमर, स्क्रैपर? इन दोनों में से ही है. यस, थेल से फर्स्ट बेंच को है. अरे Skimmer. skimmer, yes, it's skimmer. Now coming to 17. Which of the following is not the composition of sewage? इनमें से कौन जो है सीवेज का कंपोजिशन नहीं है? Solid organic material, inorganic materials, bacteria and other microorganisms. सीवेज जो हमारे घर से वेस्ट आ रहा है, तो इनमें से ये कौन सा जो है हमारे घर से वेस्ट नहीं आता? सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस, रामानुजन से आ जाओ बेटा, जो खड़ा है आ जाओ. Solid organic matter में. Solid organic matter is not composition of sewage. Is it right? Yes. So we can say that solid organic material is not a composition of sewage. क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? सॉलिड मटेरियल नहीं आता हमारे घरों से, फीसिस आर व्हाट, दीज आर सॉलिड, है ना? सो नॉट इनऑर्गेनिक भी आता है, बैक्टीरिया अदर माइक्रोब्स भी आता है, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब आ जाएगा, name the toilets in which human excreta is treated by earthworm. I think everyone can answer this question. Name the toilets in which human excreta is treated with earthworm. Yes, from the Napier I want now answer. Yes, Napier से आ जाओ बेटा, third bench girl who is sitting towards curtain, जो curtain के पास, third last bench. Yes बेटा. मैम ऑप्शन बी। Yes, Permeate processing toilets. मैम यस। Yes. ठीक है, 18 का बी। Now coming to 19th question. Water obtained after removing sludge and oil grease is called. जो वाला टैंक था जिसमें ट्रायंगल वाला बना था, जिसमें हमने ऑयल और रिमूव स्लज, ठीक है, तो वो जो पानी बचता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? यस, थेल से हु इज गोइंग टू आंसर एक्सेप्ट दिस बॉय? उस बच्चे की 2 बार टर्न आ चुकी है। और कोई बच्चा? थेल्स, यस थेल्स। यस थेल्स बेटा, व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है? मिडल रो थर्ड बेंच बॉय, जो गर्ल्स वाली साइड है, जो भी पेपर लिया जिसने। यस, थर्ड बेंच बॉय, मिडल रो, स्टैंड अप बेटा। जो वॉल वाली साइड बैठा है, खिड़की वाली साइड नहीं बैठा, वॉल वाली साइड है। यस, सो व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? व्हाट्स द आंसर? क्या आंसर है बेटा? वाटर, water obtained after removing sludge and oil grease is called? Mic on करो from the Zoom. Turn the mic on. I'm not able to understand you, whatever you are saying. Do one thing, अपनी सीट पे जाओ. Go to your seat. Go to your seat बेटा. अब वहां से खड़े होके मुझे अगर ऑप्शन ए सही लग रहा है, शो मी द 1 फिंगर, फॉर द बी शो मी द 2 फिंगर, फॉर द सी शो मी द 3 फिंगर, फॉर द डी शो मी द 4 फिंगर. टेल मी, what do you think answer of question number 19? You are saying it's distilled water. Okay, sit down. Who else can tell me the answer of this question? Okay, आजो, tail say first bench boy, आजो. Yes. Yes बेटा. Clarified. Clarified water. Yes, it is clarified water. That's nice. Sit down. Now, which bacteria, Vibrio cholera, which bacteria, sorry, it's a typing error, which disease the bacteria Vibrio cholera cause? जो पहले डिजीज लिखा है उसको, सॉरी बैक्टीरिया लिखा है उसको डिजीज कर लो. विच डिजीज द बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा कॉज? उसके नाम में ही डिजीज है वो. विच डिजीज द बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज? कौन सी डिजीज करता है वो?
विब्रियो कॉलेरा कौन सी डिजीज करता है? इट्स इन हिज नेम ओनली, उसके नाम में ही है वो डिजीज। यस, रिचर्डसन से कॉर्नर रो, थर्ड बेंच बॉय। आ जाओ बेटा, गिरना मत, सीधा हो जाओ। यस बेटा, बी। Yes, it's cholera. That's nice. So it's cholera. Now coming to 21st, the bacteria Salmonella paratyphi causes. अब इसके भी नाम में ही है वो disease. The bacteria Salmonella paratyphi causes. इसके नाम में ही है इसकी disease भी. इसके नाम को ध्यान से देखो. Paratyphi. कौन बता सकता है इसका आंसर 21st का? Yes, हार्डी से सेकंड बेंच गर्ल, मिडल रो. A option, typhoid. Option is A, that is typhoid. देखो टिफाई लिखा हुआ है ना उसके नाम पे, उसी से टाइफाइड. ठीक है. Now the amount of water in activated sludge. Activated होता है जिसमें माइक्रोब्स भी हैं. ठीक है, they are working still. So 22nd, the amount of water in activated sludge is. Activated sludge में कितना पानी होता है? Yes, last bench नेपियर आज हुआ है. Corner row. Corner row Napier, who is sitting along the wall वाली side. Option C 95%. Option 5, if I say 97, 95%. it's 97 beta. Which of the following is true about ozone? Ozone के बारे में क्या चीजें सही हैं? ठीक है. Used to disinfect water, it absorbs UV radiation, it is poisonous, or all the above. Who can tell me the answer of this? Okay, Ramanujan beta बैठ जाओ, you sit. Other sections. Now हार्डी से मिडल रो थर्ड बेंच गर्ल आ जाओ. हार्डी थर्ड बेंच गर्ल. बेटा आवाज नहीं आई. All of above. Yes, all of above. That's nice. That's nice. So it's correct. Now, which of the following is a waterborne disease? इनमें से कौन सी जो है waterborne disease है? Which one is waterborne disease out of these three? So Richardson से third bench girl आ जाओ. Third bench girl आ जाओ. So yes, B. Yes. So it's hepatitis. ठीक है. Hepatitis can also be from this or dysentery also. So we can say B and C. ठीक है. So now with this our MCQs are done. ठीक है, हमने MCQs सारे कर लिए. Now we are left with the assertion, reason and subjective questions that we will do in the next class. ठीक है. So with this, bye everyone. Bye students. Bye. Take care.